Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor to help in the completion of your English syllabus for this session. We have completed almost all the chapters from our main course book Flamingo. This video covers the last chapter of Flamingo, that is Going Places, written by A.R. Barton. We'll see some author's information with the information of the characters of this chapter is in the form of a play. You can say some of the statements and dialogues spoken by the characters are there. So we'll see some characters, then line by line explanation with the vocabulary. At last we'll cover up the textual question. So let's start with the author's information. A.R. Barton is a modern writer who lives in Zurich and writes in English. And the story Going Places, Barton explores the theme of adolescent fantasizing and hero worship. Adolescent fantasizing. Adolescent is the age when we cross after means when we enter teenage. That is called adolescent, when so many physical and mental changes with the hormonal secretions, the changing hormonal secretions occurs in our body, and because of that our mental state also unstable. We started just busy or remain in the fantasies and imaginations, hero worship. So many things are there in this age that is very common and very obvious. So A.R. Barton has talked about all these things in this chapter by describing some of the characters in the story Going Places. सो इसमें जो एडोलेसेंट कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, एंड वन ऑफ द मेन कैरेक्टर दैट इज गर्ल, शी इज़ डूइंग हीरो वर्शिप. मीन्स शी इज़ जस्ट कंसिडरिंग वन ऑफ द पर्सन एज her ideal hero, and she always remain in the thought of that character. So let's see some characters of this chapter. First, the main character is Sophie. Sophie is a teenager girl. One teenage girl. Jency is a friend and classmate of Sophie. Geoff, an elder brother of Sophie. Denny Casey, a young Irish football player. Derek is a younger brother of Sophie, and father and mother of Sophie are also featured. So these are some of the characters. Some of the characters are just for sake of, they are just means to show the family, to show the completion of the family. Otherwise their role is not much here. Here the main character is Sophie, Jency and Geoff, and the Irish football player Denny Casey, and we'll talk about that only. So some expression in the starting of the chapter is given. Let's see the meaning of those expressions. First is incongruity. Incongruity is called inappropriate. This word has also come in Poets and Pancakes, where we find the meaning in dissimilarity. So dissimilarity, inappropriate, is called incongruity. Next is prodigy. Prodigy is called a young person with exceptional qualities. Means some of the person or celebrities to whom you are watching on a screen or magazine, means related to social media, they are not easy approachable person. So you can say prodigy, or we can find some of the person as well if you are considering somebody as your mentor, as your idol, living in the same society, तो वो भी prodigy हो सकते हैं. यानी कि जो एक inspiration होते हैं young लोग, they come in this category. Next is chuffed, means cheerful. Solitary, elm is a single tree. Elm is a tall tree. Elm एक tree का नाम है, जैसे हमारे यहाँ होते banyan tree, people tree, वैसे elm tree है, लंबा सा पेड़ होता है. Solitary is come when the tree is there, single, means single stand tree was there. That's why it is called solitary. Elm means elm tree है. Solitary is an adjective that is applied with this noun. Next is arcade, is called gallery. Amergo is called yellow, orange or brown in color. That is called Amergo. Wharf is dock. Dock is the place where ships are loaded and unloaded. That is the place called wharf. Now pangs of doubt is called sharp pain. When you are feeling very uneasiness because of some reason or condition, and that's why you are having so many doubts, okay, and that doubts are taking you towards negativity, and that's why you are feeling some pain in your mental status condition. That is called sharp pain. Okay, so let's start. All these expressions are used in the text of this chapter. So now here the chapter start. When I leave, Sophie said, coming home from school, I'm going to have a boutique. तो यहाँ पे statement से ही
ही ये चैप्टर हमारा शुरू होता है, जहाँ पर सोफ़ी हमारी फर्स्ट स्पीकर है इस चैप्टर की। वो बोलती है जब मैं छोड़ूंगी, जब छोड़ूंगी तब मैं एक बुटीक ओन करूंगी, या मेरे पास एक बुटीक होगा। और ये लो कमिंग होम फ्रॉम स्कूल से घर आ रही है सोफी, तब वो बता रही है एंड ऑब्वियसली देयर इज वन अनदर पर्सन दैट इज जेंसी। तो दो फ्रेंड्स हैं, वो दोनों साथ आ रही हैं, स्कूल से घर आ रही हैं, और तब सोफी बताती है कि जब मैं छोड़ूंगी, क्या छोड़ूंगी, स्कूल, यानी कि जब मेरा स्कूल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक बुटीक ओन करूंगी। तब जेंसी कहती है, जेंसी इज अनदर कैरेक्टर, सोफी इज फर्स्ट कैरेक्टर, जेंसी इज अनदर कैरेक्टर, ये दोनों आ रही हैं। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद her along the street looked doubtful. Linking is called joining. जो जेंसी है वो उसके हाथ पकड़ कर जा रही है, वो दोनों जा रही हैं स्ट्रीट पर, वो उसको डाउटफुली देखती है, मतलब कंफ्यूजन पे देखती है, वो जो कह रही है उस पर उसको बिलीव नहीं हो रहा है। टेक्स मनी सोफ समथिंग लाइक दैट। टेक्स मनी इज कॉल्ड चार्ज और डिमांड बोल सकते हो आप। मीन्स वट एवर यू आर थिंकिंग, उसके लिए पैसा लगता है। बुटीक खोलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर तुम ये करते हो समथिंग लाइक दैट, दैट किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, बुटीक के लिए आ रहा है। तो उसने कहा कि बुटीक ओन करना कोई बहुत सिंपल सी बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू ओन द बुटीक तो तुम इसके लिए बहुत पैसा लगता है। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। मैं कर लूँगी, मतलब मैं ले लूँगी, ये मैं अरेंज कर लूँगी मनी। और उसके बाद सोफ़ी जो है बहुत दूर स्ट्रीट पर देखने लगती है। टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच। अगेन वो जेंसी उसको बोलती है कि इसमें तुम्हें बहुत सारा टाइम लगेगा, इतना सारा पैसा जब जमा करोगी तो बहुत सारा टाइम लगेगा। जेंसी और जो सोफ़ी हैं दोनों स्कूल में पढ़ती हैं, लेकिन उनको ये चीज़ पता है कि बुटीक या किसी इस तरह की बड़ी चीज़ ओन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जेंसी उसको बोलती है कि इतना सारा पैसा लेने के लिए तुमको बहुत टाइम लगेगा। वेल आई विल बी मैनेजर दैन, यस ऑफ कोर्स, and to begin with, till I have get enough, but anyway I know just how it is all going to look. उसने कहा कि ठीक है, अगर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए तो मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। तब तक उसको पता था मैनेजर इज अ गुड पोस्ट, मैनेजर मीन्स इन एनी ऑफ द कंपनी दे अर्न वेल। उसने कहा कि ठीक है, मैं मैनेजर बन जाऊंगी, तब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और उसके बाद मैं शुरू करूंगी। एंड उसके टिल देन, मतलब मैनेजर बनने के बाद तो मेरे पास काफ़ी पैसा आ जाएगा, बट एनीवे मैं यहाँ पर आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लाइक, मुझे पता है कि ये सब कैसा होने वाला है। मतलब उसने पूरा एक तरह से देखा जाए तो एस्पिरेशन है, उसने ठान लिया है, उसका एम है कि उसको एक बुटीक खोलना है। जेंसी उसको बता रही है कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम नहीं अरेंज कर सकती। तो सोफी ने कहा कि ठीक है, जस्ट आई एम जस्ट अप्रोचिंग अ काइंड ऑफ जॉब सो दैट आई कैन अर्न दिस मच ऑफ मनी एंड आफ्टर दैट आई विल कंप्लीट माई ड्रीम। मीन्स एनी हाउ शी वॉज जस्ट सस्टेन। जेंसी वॉज कंटिन्यूसली टेलिंग दैट this is a dream, you cannot complete that, but Sophie was determined and ready to find any of the job to complete her own dream to open a boutique. They wouldn't make you manager straight off. Soph. Now Soph is, we can say the affectionate word. जब हम लोग प्यार से नाम बोलते हैं तो छोटा सा नाम बोल देते हैं, वैसे जेंसी सोफी को सोफ बुलाती थी। तो उसने कहा कि यहाँ पे दे का मतलब है द पीपल और द पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो हायर करते हैं, लोगों को नौकरी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो तुमको एकदम से मैनेजर थोड़ी बना देंगे। स्ट्रेट ऑफ इज कॉल्ड, दिस इज अ वेरी हाई रैंक पोस्ट। तुम एकदम से जॉब नहीं मैनेजर नहीं बन सकती हो। मीन्स जेंसी के अकॉर्डिंग उसको पता था कि हमको छोटे लेवल से स्टार्ट करना होता है एंड दैन ओनली वी कैन रीच एट अ सर्टेन पोस्ट। I'll be like Mary Quant. Again, सोफी क्या बोलती है, ठीक है तो मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी। Now, Mary Quant is a very famous फैशन डिज़ाइनर, बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर है जिनका खुद का बुटीक है। वो डिज़ाइन करती हैं, सेल करती हैं, उनका अपना एक बोलना चाहिए एक कलेक्शन है, पूरा ब्रांड है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं मैरी क्वेंट की तरह बन जाऊंगी। I'll be natural, लेकिन मैं नेचुरल रहूंगी। मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू टेक और एड ऑन एनी आर्टिफिशियलिटी इन माई वर्क। जो मेरे कपड़े होंगे, जो मेरे डिज़ाइन होंगी, वो सारी नेचुरल होंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट। दे अगेन यहाँ पर किसके लिए आया है, वो बोल रही है कस्टमर्स।
कस्टमर्स मतलब जो भी आएंगे मेरी शॉप में, जो मेरा कलेक्शन देखेंगे, खरीदेंगे, वो सारे स्टार्टिंग से ही ये चीज़ देखेंगे कि जो मेरी डिज़ाइन है वो मैंने नेचुरल रखी है। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप द सिटीज़ एवर सीन। सोफ़ी कहती है कि मेरा जो इस सिटी का जो सपना है, मेरा जो सपना है वो इस सिटी में बहुत बड़ा एक शॉप ओन करना है। मतलब इस सिटी में बहुत सारी अलग अलग शॉप हैं, लेकिन मेरा जो बुटीक होगा वो सबसे अलग होगा और मैं उसमें अपनी नेचुरल डिज़ाइन के कपड़े रखूंगी जैसे मैं चाहती हूँ। So many other boutique and shops and fashion houses are there, but they are just add-oning artificial and so many pomp and shows design. But mine will be natural, and मेरी जो shop होगी वो सबसे बड़ी होगी इस शहर की। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory. Now, earmarked is called, they were clinged, okay? They were inclined or they were, we can say ना, connected और reserve बोल सकते हो आप, कि उन लोगों का ये reserve था कि वो लोग जो थे वो lower middle class family से belong करते थे। तो ये चीज़ जेंसी को अच्छे से पता थी। जेंसी बोलती है कि मुझे अच्छे से पता है कि हम लोगों का क्या काम है, हम लोगों को क्या काम करना है, एंड वो उस पर स्टिक है। मतलब जेंसी को पता है कि वो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भाई हम लोगों के पास रिजर्व है कि हम लोग बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हैं। जो उनके पेरेंट्स थे वो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे, तो उसने कहा कि बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में जो काम करते हैं, दे शुड नॉट होप सो मीन्स बिग ड्रीम्स, हायर इमेजिनेशन उनको नहीं करना चाहिए। एंड बिकेम मेलंकली, और हम लोग सैड हो जाते हैं। मीन्स वो क्यों सैड हो गई, उनको पता था कि बिस्किट की फैक्ट्री में काम करके वो इतना नहीं कमा सकते जो इतने बड़े बड़े सपने पूरे कर लें। शी विश्ड सोफी वुडंट से दीज थिंग। उसने कहा कि, और उसने विश किया कि ये सोफी इस तरह की चीज़ें ना बोले। किस तरह की चीज़ें ना बोले? कि मुझे एक बुटीक ओन करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू ओपन अ वेरी बिग शॉप इन द सिटी। तो जेंसी को पता था, जेंसी वॉज लिविंग इन द रियलिटी, सोफी वॉज लिविंग समवेयर इन द इमेजिनेशन। तो जेंसी उसको बोलती है, उसको विश करती है कि वो कभी ऐसा ना करे, बिकॉज उसको अल्टीमेटली सैड होना पड़ेगा, बिकॉज द ड्रीम इज नॉट गोइंग टू फुलफिल। When they reached Sophie's street, Jancy said, जब वो सोफी की स्ट्रीट पर पहुंच गई, सोफी की स्ट्रीट आप बोल सकते हो सोफीज होम, जब उसका घर आने वाला था, जेंसी ने कहा, इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, बस थोड़े ही टाइम रह गया है सोफ, यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुमको सेंसिबल बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। थोड़ा टाइम किस में रह गया है? स्कूल ओवर होने में। उनके स्कूल के लिए थोड़े टाइम बचा था। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें, जेंसी बोली कि तुमको समझदारी से काम लेना चाहिए। दे डोंट पे well for shop work, you know that. Your dad would never allowed it. मीन्स दे डोंट पे वेल। दे अगेन यहाँ पर आया है जहाँ पर उनको फैक्ट्री से जो ओनर है उनसे पे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि ये ज़्यादा जो है हमको अच्छे से पे नहीं करते हैं फॉर शॉप वर्क। मीन्स किसी भी काम को करने के लिए, मीन्स आपका अपना कोई काम नहीं है, यू आर डूइंग जॉब समवेयर, तो वहाँ से आपको मनी भी बहुत कम मिलता है। और उसके बाद बुटीक जब अपना तुम खोलोगी तो मे बी इट इज़ गोइंग टू बी रन और नॉट, ये चले या नहीं चले, बिकॉज सो मैनी अदर फैशन houses are there, so it is very risky as well as impossible work to do। और तुम्हारे डैड, सबसे बड़ी बात कि जो तुम्हारे डैड हैं वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे तुमको ये काम करने के लिए, बिकॉज यू नीड सच अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। तो जेंसी और सोफी ये दोनों इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। और एन एक्ट्रेस, नाउ देर इज रियल मनी इन दैट। अभी जब सोफी उसको ये बताती है कि देखो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आफ्टर ओपनिंग द बुटीक यू कैन अर्न सो मच मनी, मे बी इट कैन रन और लाइक्ड बाय द कस्टमर और नॉट। तो सोफी कहती है ठीक है तो मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी। नाउ देर इज रियल मनी इन दैट, वहां पर तो बहुत सारा पैसा होता है ना। येस, एंड आई कुड मे बी हैव अ बुटीक ऑन द साइड। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, डू दे? उसने कि ठीक है, अगर मैं एक्ट्रेस बन गई तो मैं साइड में अपना एक बुटीक भी खोल लूँगी, क्योंकि एक्ट्रेसेस के पास तो बहुत पैसा होता है। तो जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आई विल बी एबल टू ओपन अ बुटीक। और उसके बाद उसने कहा कि एक्ट्रेस पूरा टाइम वर्क थोड़ी करती है, मतलब थोड़े टाइम में एक्ट्रेस जो एक्टिंग का वर्क करूँगी, थोड़े टाइम में अपना बुटीक संभालूंगी। दैट Anyway, that or a fashion designer, you know something a bit
सोफेस्टिकेटेड। उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बनी तो मैं एक फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। और तुमको पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी सोफेस्टिकेटेड है। नाउ सोफेस्टिकेटेड इज जस्ट व्हेन यू आर बिहेविंग इन अ वेरी कल्चर्ड वे। आपका जो उठना बैठना खाना पीना मीन्स द लाइफ स्टाइल इज वेरी मीन्स वी कैन से ना इन अ परफेक्ट एंड एक्सलेंट मैनर जब रहता है। बहुत ज़्यादा फैशन और कल्चर का, लाइफ स्टाइल का, ईच एंड एवरीथिंग यू आर केयरिंग मीन्स सोसाइटी लेवल आपका बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है हर चीज़ में, लाइफ स्टाइल में। दैट इज़ कॉल्ड लिविंग इन अ सोफेस्टिकेटेड वे। तो वो ये कहती हैं यहाँ पर, सोफ़ी बता रही है कि या तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँगी, नहीं तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी, कुछ भी मैं बनूँ, बट मैं बहुत सारा मनी अर्न करूँगी और एनी वे एनी हाउ आई विल ओपन माई बुटीक। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रियलिटी एंड ड्रीम्स। इन रियलिटी their families are working in a biscuit factory, out of which they can hardly earn the livelihood for their filling the tummies of their family members. And at the other side, Sophie was just hoping to become a Mary Quant, a fashion designer, an actress, owning a boutique. ये फैंटेसी, ये ड्रीम वर्ड है। तो हम बोल सकते हैं ये जो ड्रीम वर्ड है इसमें कौन रहता है, इसमें सोफी रहती है। और जो ये रियलिटी है, जेंसी इज कनेक्टेड टू रियलिटी। उसको पता है रियलिटी क्या है और सोफ़ी कहाँ रहती है। सोफ़ी हर वो चीज़ चाहती है जो वहाँ पर उसने देखी है, वेल्दी एस्टैब्लिश्ड पर्सन, ये सारे ड्रीम्स उसके हैं।